commerce classes, 9th standard history. Today we are going to start with the first lesson, sources of history. In this chapter we are going to study written sources, material sources, oral sources. Okay, three. And in this you have to make a web, in this you have to make a web, and in this you have to make a web. And these three questions are your homework today. We are going to start with this lesson. Okay, page number 1, first lesson. Keep your textbook ready, keep your pencils ready. I am going to mark some important lines, important questions. Sources of history. Till now we have studied the history of ancient, medieval and modern India. Now in previous lessons and previous standards, you have studied about the history of ancient time, kings का क्या रूल था. Then धीरे धीरे से medieval time is like कि थोड़ा बहुत लोगों के mind changes होने लगे, थोड़ा सा modernity आने लगी, that is medieval time. Then it came to modernity, modern time like कि people started taking education and people started working. तो आज भी हम modern history में रह रहे हैं. Okay, तो ये तीनों दौर हमने study किया है. This year we have to study the history of India in the post-independence era. Sources of modern history are different from those of ancient and medieval history. In this lesson we are going to study something interesting about history. We can study history with the help of various sources like underline karo, written sources, material sources, oral sources and sources in audiovisual medium. हम ये लेसन में स्टडी कर सकते हैं कि हिस्ट्री कैसे थी कि रिटन सोर्सेज, मटेरियल सोर्सेज और ओरल सोर्सेज. मटेरियल सोर्सेज में क्या हम लिखा हुआ डॉक्यूमेंट स्टडी कर सकते हैं. मटेरियल सोर्सेज में हम क्या देख सकते हैं, पुरानी चीजें जो पहले प्रिवेल करती थी. और ओरल सोर्सेज इज जस्ट सॉन्ग्स एंड फोकलोर्स. In the modern period, we have to take note of various sources of the regional, state, national as well as international level. We can write history with the help of these sources. Written sources, first one, written sources. Okay, written sources में ये कॉलम है, ये कॉलम आज होमवर्क में करना है. Okay, this will come for 2 marks. You have to do it in your history book. Written sources. The following sources are included in the sources. I'm reading this from the blog. न्यूज़पेपर्स प्रिंटेड होते हैं. जो चीजें प्रिंटेड है वो रिटन सोर्सेज है. पीरियोडिकल्स, डायरीज, पीरियोडिकल पता हर 15 डेज में भी जो न्यूज़पेपर आता है. डायरीज जो लिखी हुई रहती है. रेफरेंस बुक्स, अगर हमको हिस्ट्री के वॉर के बारे में, हमको इंडिपेंडेंस के बारे में कुछ समझना है तो हम उसके रिलेटेड बुक्स, जैसे हम लाइब्रेरीज में भी देखते हैं, वो बुक्स हमको मिल सकते हैं और वो लिखे हुए हैं. करेस्पॉन्डेंस, documents in archives. Archive is a place where important documents are stored. Government gadgets, postage stamps, encyclopedia पता है हम लोग को, जैसे रैन मार्टिन है, कुछ अभी आजकल डिक्शनरीज है, ये सब written sources हैं. The place where historical documents are preserved is called archives. ये ब्लॉक में से fill in the blank marking करो. The main office of the National Archives of India is at New Delhi. न्यू दिल्ली में है, जहाँ पे पूरे डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे स्टोर किया है, प्रिजर्व किया हुआ है. और जब भी जरूरत पड़ती है ये स्कॉलर्स और एक्सपर्ट्स को उसको रेफरेंस के लिए दिया जाता है. It has to be handled with care. It is the largest among the archives in Asia. Just as newspapers are considered the fourth pillar of democracy. जब न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ, at that time the modernity started. People came to know what is going on in the world as well as in our country. लोगों, जब न्यूज़पेपर इन्वेंट हुआ, जब न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ, तभी लोगों में तभी मॉडर्निटी ज्यादा आई. बिकॉज पीपल स्टार्टेड कमिंग टू नो व्हाट द थिंग्स हैपनिंग. लोगों को पता चलने लगा कि अपने आजू बाजू में, अपने स्टेट में, अपने नेशनल लेवल पे क्या क्या चीजें हो रही है, ये लोगों तक पहुंचने लगा और लोग उससे जागरूक होने लगे. They are also a major medium of information. We know that कि न्यूज़पेपर्स हमको पूरी दुनिया की न्यूज़ देते हैं. आज भी न्यूज़पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट. If we consider the period from 1961 to 2000, we see that in the beginning there was no alternative to the print media. हम पहले देखते कि न्यूज़पेपर के अलावा हमारे लोगों के पास कुछ भी नहीं था न्यूज़ पहुंचाने के लिए. स्पेशली न्यूज़पेपर, सिर्फ न्यूज़पेपर, तभी न्यूज़पेपर भी नहीं थे.
With localization and widespread use of internet in India, an alternative for print media became available. Yet the print media will still continue to be powerful. फिर धीरे धीरे से न्यूज़पेपर इन्वेंट हुआ, न्यूज़पेपर आ गया, प्रिंटिंग प्रेस आ गया। न्यूज़पेपर आने से पूरे वर्ल्ड वाइड में हमको सब इंफॉर्मेशन मिलने लगी और वो बहुत ही पावरफुल एक पिलर था एक कंट्री का। और आज भी प्रिंट मीडिया न्यूज़पेपर इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड इट विल कंटिन्यू टू बी सो। फर्स्ट वन, न्यूज़पेपर। थ्रू न्यूज़पेपर्स हमको न्यूज़पेपर से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है? वी कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल अपने कंट्री में और दूसरे बाहर के देशों में भी क्या हो रहा है वो हमको न्यूज़पेपर से पता चलता है। पॉलिटिक्स, the government, how the government is taking the steps, what the government is doing, we can come to know. Our sports, we see sports also. न्यूज़पेपर कभी देखा है तो लास्ट few pages पे देखो पूरे स्पोर्ट्स के बारे में आता है। लिटरेचर, राइटिंग वर्क एंड सोशल एंड कल्चरल अफेयर्स, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन न्यूज़पेपर। एक न्यूज़पेपर में हमको हर टाइप की न्यूज हमको अवेलेबल होती है। न्यूज़पेपर्स कंटेन मैटर्स रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ। न्यूज़पेपर में इंसानों की लाइफ में जो भी होता है वो रिलेटेड न्यूज होती है। मोस्ट नेशनल न्यूज़पेपर्स हैव स्टार्टेड देयर रीजनल एडिशंस, और कुछ लोकल न्यूज़पेपर होते हैं, लोकल भी होते हैं। They publish supplements that they give information about various topics. Supplement मतलब जैसे कि अभी स्कूल्स में भी कभी कभी दिया जाता है, तो उसमें से देखो हफ्ते भर में क्या इवेंट्स हुए या 15 दिन में क्या इवेंट्स हुए, वो एक सप्लीमेंट होता है और वो लोगों तक पहुंचाया जाता है। Newsletters of various moments, the dailies or weeklies of political parties, monthly and annual magazines are important among the print media. मंथली हर महीने का जो मैगजीन्स होती है हम लोग देखते हैं, बहुत सारे अलग अलग इसके फिल्म फेयर की भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे हर महीने की जो मैगजीन्स निकलती है। एंड वी सी द एनुअल आल्सो। एनुअल मतलब पूरे साल भर में क्या हुआ, तुम्हारे स्कूल्स में भी होता है, स्कूल्स का भी मैगजीन निकलता है और पूरे साल भर में क्या एक्टिविटीज हुए वो उसमें रहता है। ओके, दैट इज आल्सो प्रिंट। Some newspapers produce special supplements towards the end of the year that take an overview of the important events of the year. Such supplements have understand the important events of the year. First one, Press Trust of India. ये 2 marks के लिए आएगा। After 1953 ये भी आंसर तुमको लिखना है। The Press Trust of India has been an important source of primary details of all important events and of articles on important subjects. Press Trust of India has provided, अंडरलाइन करो, रिपोर्ट्स, इसमें रिपोर्टिंग होता है, फोटोग्राफ्स होते हैं एंड आर्टिकल्स ऑन फाइनेंशियल एंड साइंटिफिक इश्यूज। फाइनेंशियल इज लाइक यू नो कि इकोनॉमी क्या हो रही है। पीटीआई हैज नाउ स्टार्टेड ऑनलाइन सर्विसेज। अभी ऑनलाइन सर्विसेज हो गया है, न्यूज़ अभी हमको ऑनलाइन भी आ सकती है। पीटीआई हैज नाउ स्टार्टेड ऑनलाइन सर्विसेज ड्यूरिंग द 1990s. पीटीआई started using the satellite broadcast technology instead of teleprinters to send news all over the country. आज हम लोग अगर टेलीविजन के सामने बैठेंगे तो हमको अपने कंट्री की भी नहीं, अपने एरिया से लेके हर एक कोने की और हर एक देश की न्यूज हमको अवेलेबल रहती है। दिस मटेरियल इज इम्पोर्टेंट फॉर राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न। और ये सब न्यूज के जो इवेंट्स होते हैं ये न्यूज़पेपर में भी प्रिंट होते हैं। ओके, among the print media, the information contained in the annual issues of the publication division of Government of India is authentic and trustworthy. For example, the Information and Broadcasting Department published in India 2000 an annual reference book. This reference book is created under Research, Reference and Training Department. यहाँ पे जो भी साल भर में जो इवेंट्स होते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बहुत ही प्योर होते हैं, ऑथेंटिक होते हैं, करेक्ट होते हैं। It contains useful information about the land, its people, national emblems, political system, defense, education, cultural events, and an account of the developments in the fields of science and technology, environment, health and family welfare, social welfare, media of mass communications, along with basic data related to economics, finance, planning, agriculture, water conservation, rural development, food and civil supplies, energy, industries, trade and commerce, transport, communication, labor, housing laws, and statutes, youth and sports departments. It is possible for us to write history with the help of such information.
यहाँ पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन है और वो इंफॉर्मेशन से हम बहुत सारी हिस्ट्री लिख सकते हैं। अगर स्पोर्ट्स के बारे में है तो हम पहले क्या स्पोर्ट्स होता था और अभी क्या है चेंजेस उसमें, ये सब हम स्टडी कर सकते हैं। ना पोस्टेज स्टैम्प्स, पेज नंबर 2। The postage stamps don't reveal anything on their own. अभी ये just see this stamps. ये ब्लॉक में स्टैम्प्स है, अलग अलग स्टैम्प्स है, and when we see it we will not understand. हम उसको स्टडी नहीं कर पाएंगे, हम समझ भी नहीं पाएंगे, लेकिन एक हिस्टोरियन जो होता है, एक स्कॉलर जो होता है, वो बहुत अच्छे से उसको समझ सकता है और वो स्टडी करता है और फिर वो हमारे तक इंफॉर्मेशन देता है। The postage stamps don't reveal anything on their own, yet a historian makes them speak. There have been several changes in postage stamps since India became independent. इंडिया इंडिपेंडेंस होने के बाद देखो कितने अलग अलग शेप में ये स्टैम्प्स आए हैं। पोस्टेज स्टैम्प्स रिवील अ लॉट टू अस अबाउट चेंजिंग टाइम्स, और ये स्टैम्प्स हमको अपना दौर कैसे बदल रहा था, कैसे टाइम चेंज हो रहा था अपने कंट्री में इंडिपेंडेंट होने के बाद भी, ये हमको दर्शाता है, हमको दिखाता है स्टैम्प्स, क्योंकि हर टाइम के हिसाब से स्टैम्प्स आल्सो चेंजेस due to the variety of the sizes of the stamps. अलग अलग टाइप के साइजेस है, you can see different types of sizes of the stamps. स्टैम्प पहले लेटर्स वगैरह पोस्टिंग करने के लिए स्टैम्प्स का कंपलसरी होता था। स्टैम्प द नोवेल्टी ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड कलर स्कीम्स, how what type of colors, their pattern, their design also gives much information. The postal department issue postage stamps as wide as variety of themes like underline करो, पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में भी, पॉलिटिकल लीडर्स के भी स्टैम्प्स होते हैं। फ्लावर्स फूलों के जैसे स्टैम्प्स होते हैं। एनिमल्स, बर्ड्स एंड इवेंट और द सिल्वर, गोल्ड एंड डायमंड जुबलीज और सेंटेनरी, बाइसेंटेनरी, ट्राइसेंटेनरी और डिफरेंट इवेंट्स, कितने सदियां बीत जाती है उसके हिसाब से भी वो स्टैम्प्स को निकाला जाता है। इट इज therefore a valuable repository of history. इसके लिए हिस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी भी प्रिजर्व्ड है, और जब भी स्टैम्प्स के बारे में हमको स्टडी करना रहता है तो वी कैन रिफर इट। इवन डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैम्प्स ऑफ विच कंट्री, और अपने कंट्री में किस दौर से कौन से स्टैम्प्स थे और वो स्टैम्प्स क्या रिवील करते हैं, उनका इंफॉर्मेशन क्या था और किस दौर में वो चेंज होते गए, ये सब इंफॉर्मेशन हमको स्टैम्प्स में मिल सकती है। Now stamps, postage stamps, newspaper, press, printing press, ये सब written sources है, लिखा हुआ, और ये लिखा हुआ हमेशा रहेगा। Now we proceed to material sources. Material sources का एक यहाँ पे verb है, okay, page number 2. You have to do this in your history notebook. Do this. Material sources, coins, हमको पता है कि अगर 5-10 साल पहले भी कॉइन्स थे तो देखो 1 रुपये के कॉइन्स भी कितने हैवी होते थे, अलग अलग टाइप के कॉइन्स आए। 25 पैसे तो था, चलता था, अभी नहीं है, ओके, इट डज नॉट वर्क नाउ। 50 पैसे ऑल्सो आर डिसअपियर्ड, तो हर दौर में चलता था जो भी कॉइन्स है। तो कॉइन्स एक मटेरियल सोर्सेज है, कौन 1 पैसा, 2 पैसा, देन 20 पैसे, 25 पैसे, ये सब कॉइन्स हमको आर्टिक्स में दिखेंगे, म्यूजियम्स में भी रखे रहेंगे। देन प्लेसेस ऑफ वर्शिप, टेम्पल्स, मॉस्क, चर्चेस, जो कितने साल पहले बनाए हुए थे, वेरी स्ट्रॉन्ग बिल्ड, ये भी हम देख सकते हैं मटेरियल में। थिंग्स इन डेली यूज, रोज की चीजें जो हम यूज करते हैं उसमें भी मटेरियल सोर्स में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से पहले के लोग यूज करते थे, वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। रॉयल सील्स, बड़े सील्स होते थे। ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स आर ज्वेलरीज, किस तरीके से पीपल यूज्ड टू वेयर इयररिंग्स एंड ऑल। म्यूजियम्स, म्यूजियम्स आर वेरी फेमस नाउ आल्सो वी विजिट टू म्यूजियम्स लाइक पैलेसेस होते हैं, बहुत सारे म्यूजियम्स होते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोगों की जो फ्रीडम फाइटर्स से लेके अपनी कंट्री की या दूसरे कंट्री की हिस्ट्री वहाँ पे रखी रहती है, बहुत सारी चीजें हमको देखने मिलता है। क्लोथिंग, what type of clothes they used to wear, how they used to wear, or if there were some rulers and all, what the king used to wear, किस तरीके से उनका पहनावा रहता था। मॉडर्न आर्किटेक्चर, किस तरीके से बिल्डिंग्स या म्यूजियम डिजाइन होता है, उनका आर्किटेक्चर जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट।
तो ये सब मटेरियल सोर्सेज में आएगा. प्लीज डू दिस वेयर. We'll take one example, coins. You can see these coins. Okay, now you will see very rarely this. We can also understand history with the help of coins and the changes in the printing of currency notes. 5 years back 1000 रुपीज की नोट थी और 5 years के बाद उसको बंद किया गया, तो अभी वो हमारे रेफरेंस में चला गया. ओके, इट्स नॉट प्रिवेलिंग हियर. तो इसी तरीके से पैसा भी, करेंसी भी चेंजेस होते रहती है. वी हैव नॉट सीन 200 रुपीज नोट, बट 200 रुपीज नोट आ गई. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अंडरलाइन करो, प्रिंट्स द नोट्स. इट इज हेडक्वार्टर्स, इट हैज अ हेडक्वार्टर्स इन मुंबई. बैंड्रा ईस्ट में है ये इसका हेडक्वार्टर. रिजर्व बैंक, जहाँ पे नोट्स को प्रिंट किया जाता है. द कॉइन फ्रॉम 1950 टू दोज यूज्ड एट द प्रेजेंट, the metal used for making them. metal मतलब जो metals जैसे कि लोहा है, तांबा है, जैसे कि पहले कॉपर के कॉइन्स आते थे, है ना, सिल्वर कॉइन्स होते थे, तो ये किस मेटल से बनाया गया है वो भी स्टडी होता है. the different shapes. now you see such a big coin of 1 rupee और अभी का 1 rupee देखेंगे तो इस बहुत ही हल्का और बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही छोटा दिखेगा. तो ये साइजेस आल्सो मैटर. The diversity of subjects on them together help us to understand the important contemporary मतलब recently. Now you can see ना कि यहाँ पे कुछ बहुत सारा देखो, इसको इंस्क्रिप्शन होता है, जैसे कि मेज, ये फार्मर्स को हाईलाइट करता है. देखो पहले issues of India, for example coins to convey the message of population. population का भी मैसेज कन्वे होता था उसमें. population control and coins communicating like the importance of agriculture and the farmers. किस तरीके से देखो यहाँ पे मेज, ये धान जो है उस पे डिजाइन ये किया हुआ है, इंस्क्रिप्ट किया हुआ है, और वो फार्मर्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए इंडिकेट करता है. नाउ कॉइन्स 1. सेकंड, म्यूजियम्स. All states of India have museums that depict the characteristics and display the cultural and social heritage of the state. Now every country, हर कंट्री का अपना म्यूजियम होता है, हर एक स्टेट का अपना म्यूजियम होता है, और वहाँ पे उस दौर में कौन से रूलर्स या कौन से किंग्स या जो भी रूल करने आए, इवन ब्रिटिशर्स, उन्होंने जो जो बनाए हैं, जैसे बिल्डिंग्स है, मॉन्यूमेंट्स है, स्टैचूज है, फोर्ट्स है, वो पूरा वहाँ पे हम देख सकते एक जगह पे. All states of India have museums. They enable us to understand history. और वो देखते वक्त, जैसे कि हम एक फोर्ट पे जाते हैं, तो वो फोर्ट हम स्टडी करते हैं. That time we come to know who has built it, और उसकी हिस्ट्री हम स्टडी करते हैं. एग्जाम्पल, छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम एट मुंबई. इसका म्यूजियम है छत्रपति शिवाजी महाराज का. Then Reserve Bank Museum in Pune city. Apart from the government museums, some private collectors also set up their own museum. गवर्नमेंट म्यूजियम्स के अलावा जो कलेक्टर, जैसे कि एक विलेज होता है या फिर एक स्टेट होता है, एक डिस्ट्रिक्ट होता है, वो लोग भी अपना अपना म्यूजियम मेंटेन करते हैं, और होना जरूरी है, बिकॉज वी कैन अंडरस्टैंड द हिस्ट्री अबाउट दैट विलेज और एनी टाइप ऑफ द स्टेट. क्योंकि हम अगर वो स्टेट में रह रहे हैं तो हमको हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए. एंड व्हेन वी विजिट टू सम अदर प्लेसेस, वहाँ पे भी हम कुछ म्यूजियम में देखते हैं और हम ये देखते हैं कि हाँ ये कंट्री या ये स्टेट कैसे बिल्ट हुआ था, यहाँ पे कौन रूल किया था, उनकी हिस्ट्री भी हमको जानने के लिए बहुत आसान होती है. They are based on distinguished subjects. Example coins, notes, lamps. किस टाइप के लैम्प्स, लाइट्स के लिए लैम्प्स वगैरह यूज होते थे. And nut crackers like how to break the nuts and all, जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट टूल्स जो बनाए गए रहते थे, ये सब रखे हुए हैं उस टाइम से लेके. इन डिफरेंट शेप्स, अलग अलग शेप ऑफ क्रिकेट इक्विपमेंट्स. क्रिकेट में पहले कौन सी चीजें यूज करते थे, अभी तो मॉडर्निटी आएगी, एवरीथिंग इज मेड इन मॉडर्न वे, बट एट दैट टाइम हाउ इट वाज डन. So in this way, museums are very very important to study history. Right, written sources we finished, where we see printed materials like documents and all, newspaper and all. Here we saw material sources, जो चीजें हम देख सकते हैं, like for example coins, notes and all. Now we go for oral sources. Oral sources में
ना ही मटेरियल रहेगा, ना ही रिटर्न रहेगा। यहाँ पे कोई लिखा हुआ चीजें नहीं है जो हम किसी को प्रूव करके दिखा सकते हैं कि हाँ ये चीजें होती थी, और मटेरियल भी नहीं है कि वहाँ पे वो चीजें बनी हुई नहीं है और कि हम ये बोले कि हाँ तुम जो बोल रहे हो सही में ये था। ओके, तो oral sources are just verbally said. These sources include, अंडरलाइन करो, folk tales। folk tale मतलब एक कहानी होती है, एक गांव होता है बहुत हजारों साल पहले का या बहुत ही पुराना, और वहां से लोगों ने एक कहानी के तौर पे गाने बनाए रहते हैं, कहानी बनाई रहती है, और वो कहानी के तरीके से हम तक पहुंचता है। तो वो कहानी हिस्ट्री है, वहां पे ना वो उसके बारे में लिखा हुआ है ना ही वो चीजें वहां पे है। ओके, दैट इज ओरल सोर्सेज। फोक सॉन्ग्स, ग्रुप सॉन्ग्स जो होते हैं, यू मस्ट हैव सीन इन कोली डांस में जो उनका जो रीजनल सॉन्ग्स होते हैं, कुछ शिवाजी महाराज के सॉन्ग्स होते हैं, फ्रीडम फाइटर के कुछ सॉन्ग्स होते हैं, कुछ गांवों के विलेजेस के, फॉर एग्जांपल घूमर एंड ऑल। प्रोवर्ब्स, कहावतें, बहुत पुरानी पुरानी कहावतें जो होती थी वो कहावतें। बैलड्स, लव पोएम्स, शॉर्ट स्टोरीज। एंड ओवीज, ओवीज आर मराठी वर्सेस इन द ओरल ट्रेडिशन। मराठी जैसे भजन कीर्तन में भी वो रहता है कुछ, और वो गांव के गाने भी होते हैं, सॉन्ग्स भी होते हैं, ग्रुप सॉन्ग्स होते हैं, जिसमें पता चलता है कि हाँ ये गांव की कहानी ये है। यहाँ पे मटेरियल सोर्सेज और रिटर्न सोर्सेज कुछ भी नहीं रहता है, ओनली अबाउट द ओरल। Activists were inspired by the Povadas. Povadas means a story of a सोल्जर हो सकता है और फ्रीडम फाइटर हो सकता है जिसने अपने सोसाइटी और अपने कम्युनिटी के लिए कुछ किया हो। ऑफ लोकशाही राणाभाऊ अमर शेख ड्यूरिंग द संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट, जैसे कि हम इंडिपेंडेंस के जो गीत होते हैं, देशभक्ति गीत, वो भी एक ओरल सोर्सेज है। नाउ वी आर सीइंग रिटन सोर्सेज where we can see the documents written anytime you can read it, it's printing. Material sources, the things which are there till now, we can see it. Oral sources, we can just hear it. Okay. Now we go to audio visual sources. Television, underline करो, ये पूरा पैराग्राफ तुम्हारा आंसर है। टेलीविजन, आज हम देखते हैं ऑडियो विजुअल टेलीविजन। वी कैन सी ऑल्सो, वी कैन लिसन ऑल्सो। टेलीविजन में हम घर बैठे पूरी दुनिया भर की न्यूज, एनी टाइप ऑफ न्यूज वी कैन सी। फिल्म्स, मॉडर्न हिस्ट्री, पहले किस तरीके से चेंज होते होते आज हम मॉडर्निटी में आए हैं। इंटरनेट, आज इंटरनेट में लाखों करोड़ों लोग अपना बिजनेस, पीपल आर कनेक्टेड इन विद इंटरनेट। कॉल्ड ऑडियो विजुअल मीडियम, इसको ऑडियो विजुअल मीडियम बोलेंगे हम लोग, जो अभी दौर ये चल रहा है मॉडर्न। Many domestic and foreign television channels also come under this head. You can see history channel, discovery channel, जब हम टेलीविजन में पूरे वर्ल्ड के न्यूज के चैनल्स होते हैं, या तुम ज्योग्राफी चैनल, एनिमल्स का, हर टाइप का जो चैनल है, फॉरेन कंट्रीज के भी चैनल्स यहाँ पे हमको दिख जाते हैं। तो दैट इज मॉडर्न, दैट इज कॉल्ड ऑडियो विजुअल, वी कैन सी एंड वी कैन लिसन। Film and Television Institute of India. The government of India started the Film and Television Institute of India at Pune in 1960, underline करो, with the purpose of providing public education. यहाँ पे पुणे में फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट, जैसे लोग एक्टिंग सीखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं या ये करियर बनाना चाहते हैं, तो इसमें यहाँ पे स्टार्ट किया है इंस्टीट्यूट, सो दैट कि लोगों तक इसका एजुकेशन मिले। An institute called Indian News Review, underline करो, has produced various news reels on important events in politics. Politics में क्या क्या होता था, सोशल इश्यूज, लोगों कम्युनिटी में क्या क्या होता था, लोगों में किस तरीके से प्रॉब्लम्स वगैरह होते थे, आर्ट, किस तरीके आर्ट पेंटिंग्स वगैरह होता था, स्पोर्ट्स, कौन सा स्पोर्ट्स होता था, एंड कल्चर, ट्रेडिशन, फेस्टिवल्स, ओके, सेलिब्रेशन, ये सब यहाँ पे दिखाया जाता था, सो दैट पीपल, ये इंस्टीट्यूट था जहाँ पे लोगों तक पहुँचाने के लिए ये एजुकेशन स्टार्ट हुआ था। This department has also produced various documentaries on prominent social leaders, on people who have made major contribution of the people, and about important locations in India. These news releases and documentaries are useful for studying the history of modern India. Now in this department,
इट हैज फोकस ऑन मेनी सोशल लीडर्स। सोशल लीडर्स मतलब जो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए जो काम करते हैं, इनके बारे में भी यहाँ पे एजुकेशन मिलता है, इनकी जानकारी मिलती है। और ये लोग ये इंडिया में लोगों तक पहुंचाने के लिए ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया है। एंड दे हैव मेड अ डॉक्यूमेंट्रीज। डॉक्यूमेंट्री मतलब शॉर्ट, 1 घंटे की जो मूवी जैसी होती है, जैसे कि कहीं कुछ प्रॉब्लम हो, कहीं कुछ इवेंट हो गया, वो इवेंट को 1 घंटे में दिखाना, उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री। ओके, तो ये डॉक्यूमेंट्रीज हमने टीवी पे भी हमने बहुत बार देखा है डॉक्यूमेंट्रीज। ये डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह ये सब यहाँ पे बनाए जाते हैं और दिस अब रिलीज किए जाते हैं और रिलीज करके लोगों तक पहुंचे, टेलीविजन के थ्रू लोगों को दिख जाते हैं। एंड दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी द मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, ये सब चीजें हमको आज की मॉडर्न हिस्ट्री को स्टडी करने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। पेज नंबर 4। Till now we have seen some important sources for writing the history of modern India. The times in the 21st century are changing so rapidly. आज वक्त बहुत ही अलग है, लोगों की थिंकिंग चेंज हो गई है, मॉडर्निटी में लोग आ गए, पीपल आर रेडी टू टेक द टेक्नोलॉजी दैट इवन दिस सोर्सेज विल प्रूव टू बी इनएडिक्वेट। और ये इतना भी हम जो स्टडी किया है वो भी कम पड़ेगा आज की मॉडर्न की हिस्ट्री को पढ़ने के लिए, बिकॉज पीपल्स थिंकिंग हैव कंप्लीटली चेंज्ड। However, new sources are coming forth. नए सोर्सेज है हमारे पास और हिस्ट्री को अच्छे से न्यू हिस्ट्री तक पहुंचने के लिए। फ्रॉम लैंडलाइन टेलीफोन टू सेल फोन्स, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था कि लैंडलाइन मतलब घर में जो टेलीफोन होता था, वो टेलीफोन को अटेंड करने के लिए 24 आवर्स घर में रहता था एंड इट वाज वेरी एक्सपेंसिव एंड फ्यू पीपल हैड इट। देन इट वेंट टू सेल फोन्स, जैसे कि तुम कॉर्ड्स जो होता था, एंड सेल फोन्स आज मोबाइल्स भी है। A gadget called pager. Pager was it was not like a instrument, it was like a pager, जो एक इंस्ट्रूमेंट होता था जिसमें तुम मैसेज कर सकते हो और वो मैसेज वो पर्सन को मिल जाता था। He used to receive that message, but he was unable to answer that message. वो मैसेज मिलने के बाद वो वापस से उसको मैसेज नहीं कर सकता था, तो दैट वाज अ ड्रॉबैक। क्योंकि वो जब मैसेज मिलेगा, वो अगर इमरजेंसी में है और इमरजेंसी में क्या हो रहा है, वो कहाँ पर है, कहाँ फंसा है, वो बोलने के लिए उसके पास कोई उसमें सुविधा नहीं थी। इसके लिए पेजर बहुत जल्दी फेल हो गए। केम अप फॉर कॉन्टेक्टिंग पीपल, ये भी लोगों तक कॉन्टेक्ट करने के लिए ही आया था, बट ओनली इफ आई वांट टू सेंड द मैसेज एंड आई कैन सेंड द मैसेज, दैट मैसेज विल बी डिलीवर्ड टू हिम, बट ही विल नॉट बी एबल टू रिप्लाई, क्योंकि मेरे पास पेजर भी होना चाहिए। बट इट डाइड as quickly as it had come up। वो डाइड मतलब वो बहुत जल्दी बंद हो गया, क्योंकि लोगों को वो फैसिलिटी नहीं मिलने लगी। The huge amount of information available on the internet is used for studying history. इंटरनेट पे अभी बहुत, गूगल हम यूज करते हैं, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन आज मिल रही है, तो हम हर टाइप की हिस्ट्री को स्टडी कर सकते हैं। बट द ट्रूथ एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज टू बी वेरीफाइड। लेकिन इंटरनेट पे जो भी गूगल पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन आता है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन कहाँ तक सही है, कितना करेक्ट है, ये देखना बहुत जरूरी है। वेरीफाई करना, सही से मालूम होना जरूरी है, क्योंकि फॉल्स न्यूज भी लोगों को बहुत ही नुकसान कर सकती है। Now it has become comparatively easy to study history with all the sources. आज हमारे पास अनलिमिटेड सोर्सेज है, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपनी मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। As these sources are from the contemporary period, क्योंकि ये contemporary मतलब recent मतलब modern period के हैं, तो इसको लेकर अपनी हिस्ट्री को स्टडी करना बहुत ही आसान होगा। They are easily available since a subject like history touches all the aspects of our life. History subject हमारे हर एक एक्टिविटी, इंसान की, ह्यूमन बीइंग की हर एक एक्टिविटी से रिलेटेड है हिस्ट्री। हिस्ट्री सिर्फ ह्यूमन बीइंग से ही बनी है। Our lives, efforts for preservation of such sources are made at all levels। और वो पहले के लोगों ने किस तरीके से वो हिस्ट्री को संभाल के रखा है, वो संभाला, इसके लिए आज हम वो हिस्ट्री को लेके स्टडी कर सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं मॉडर्निटी में। वी शुड ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू दिस एफर्ट, और हमारा भी फर्ज बनता है कि हम बहुत ही अपना एफर्ट करें मॉडर्न हिस्ट्री को बनाने में, टेक्नोलॉजी को अपनाने में, अच्छे से स्टडी करके साइंटिफिकली हर टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने में ये हमारी थिंकिंग होनी चाहिए। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर लेसन। यू हैव टू डू वट एवर होमवर्क आई हैव गिवन and just solve this fill in the blanks, read the lesson
very nicely again. Okay, thank you so much. Take care. Have a nice day.